علیکم کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوشباش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کے ایپیسوڈ 97 لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور جیسے کہ میں نے صبح پوسٹ لگائی تھی کہ اس ایک ہفتے میں کافی بزی تھی، شادی، میرے بچوں کے اسائنمنٹس، پھر میری مدر ان لا میرے پاس آئی ہوئی ہیں، تو مطلب ان سب میں نا ٹائم بہت کم ملا مجھے۔ حالانکہ میں نے ایپیسوڈ ڈیلی دی ہے، صرف ایک شادی والے دن چھوڑ کر، لیکن پتہ ہے مجھے اپنا کام کر کے مجھے سیٹسفیکشن نہیں ہوا۔ میں چاہتی تھی کہ اس پیریڈ میں کہ میں ایٹ لیسٹ ایپیسوڈ، مطلب 2 ایپیسوڈ ویک میں 2 یا 3 دوں، کہ ایک ویک میں 2 یا 3 ڈبل ایپیسوڈ دوں۔ تو پریویس جو ہمارا ویک گیا ہے، اس میں ہم نے کوئی بھی ڈبل ایپیسوڈ نہیں دی، تو مجھے بڑا ہی فیل ہوا، اور آگے میں کوشش کروں گی انشاءاللہ کہ 1-2 دن میں تو اس ویک 2-3 ڈبل ایپیسوڈ دوں، تاکہ آپ لوگوں کو بھی مزہ آئے۔ اور کیا کہوں یار، آج سنڈے تھا۔ سنڈے بہت ہیکٹک ہوتا ہے کیونکہ بچے گھر پہ ہوتے ہیں، ہسبینڈ گھر پہ ہوتے ہیں، اور پھر یہ دن تو فرمائش کا، بچوں کی فرمائشوں کا دن ہوتا ہے، یہ بلا بلا، مطلب بہت کچھ چیزیں کرنی پڑتی ہیں۔ آپ یقین کریں، میں 4 بجے سے میں نے ایپیسوڈ لکھنا شروع کیا تھا، اور پھر اس کے بعد کام بھی، یعنی سب کچھ، یعنی سنڈے ویسے تو ہالیڈے ہوتا ہے لیکن میں نہیں کرتی چھٹی میں تب کرتی ہوں جب مجھے لگتا ہے میں نہیں کر پاؤں گی تب۔ تو چلیں خیر، یہ تو روزمرہ کے کام ہے، لیکن آپ لوگ مطلب ویٹ کرتے ہیں ایپیسوڈ کا، اور جو لوگ اچھا رسپانس دیتے ہیں ان کا شکریہ، جو نہیں دیتے پلیز دیا کریں۔ تو بس ایک ہی ریکویسٹ ہے، سب بہت اچھا رسپانس دیں گے، لائک شیئر کامنٹ کریں گے، جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں۔ آج کے ایپیسوڈ بہت مزیدار ہے، آج اور محبہ کے بہت پیارے سین ہیں، آپ کو بہت پسند آئیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 380 لائک اور 160 کمنٹ ڈن کریں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ ٹارگیٹ پورا ہونے کے بعد ہی آئے گی، اور یہ سچ میں، کیونکہ آپ لوگ نہیں کرتے، جب تک میں اسٹرک نہ ہوں آپ لوگ سنتے ہی نہیں ہوں۔ رات کے 8 بج رہے تھے، سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ حنا بیگم کچھ دیر پہلے ہاسپٹل سے آئی تھی۔ ہاسپٹل سے آ کر انہوں نے بس کپڑے چینج کیے تھے اور ہاتھ منہ دھویا تھا۔ ابھی فی الحال کسی سے ان کی بات نہیں ہوئی تھی۔ یوسف کی طبیعت کیسی ہے؟ ہارون صاحب نے پوچھا۔ الحمدللہ پہلے سے بہتر ہے، اب تو ماشاءاللہ آواز دو تو آنکھیں بھی کھولتے ہیں اور مسکراتے بھی ہیں، حنا بیگم نے کہا۔ ان کے لہجے میں اپنے پوتے کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ بس اب میرے بچے خیریت سے گھر آ جائیں، ہارون صاحب نے کہا۔ انشاءاللہ خیر سے آئیں گے، جب اتنا وقت انتظار کر لیا تو تھوڑا وقت اور انتظار کر لیں، حنا بیگم نے کہا۔ وہ بالکل میرے سلطان کی کاپی ہے، وہ ہنس کر بولے۔ بالکل، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے باپ کی پرچھائی ہو۔ سلطان بھی تو اپنی ماں کی پرچھائی ہے، ہارون صاحب نے کہا، تو حنا بیگم کے ہونٹوں کی مسکراہٹ ایک دم سکڑ گئی۔ ہارون صاحب نے تو اس بات کو نوٹ نہیں کیا کیونکہ وہ حنا بیگم کو نہیں دیکھ رہے تھے، لیکن ان کی بات پر حاشر اور شہریار نے ایک دم اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ ان کے ہونٹوں کی سکڑتی مسکراہٹ ان کے دونوں بیٹوں کو تکلیف دے گئی۔ شہریار نے کبھی بھی اپنے باپ سے اس موضوع پر بات نہیں کی تھی، اور نہ ہی کبھی ان سے پوچھا تھا کہ وہ اس کی ماں سے اتنی محبت کیوں نہیں کرتے جتنی محبت وہ سلطان کی ماں سے کرتے ہیں۔ اسے کبھی اس چیز کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کبھی اس نے یہ فیل کیا تھا، لیکن آج پہلی بار اسے اپنے باپ کی یہ بات نہ جانے کیوں دل کو لگی تھی۔ خیر سے بچہ گھر آ جائے، پھر دھوم دھام سے اپنے بچے کا عقیقہ کریں گے، مہجبی بیگم نے کہا۔ جی امی، انشاءاللہ، اور ایسا کریں گے کہ سب دیکھتے رہ جائیں گے۔ ہارون صاحب کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ حنا بیگم اس کے بعد کچھ نہیں بولی، بس خاموشی سے کھانا زہر مار کرتی رہیں۔ میں آپ کے لیے چائے بنا کر لے کر آؤں؟
हिना बेगम को कुर्सी से उठता देखकर मायदा भी अपनी कुर्सी से उठकर बोली, इन इसके चाय का पूछने पर हिना बेगम ने एकदम इसकी तरफ देखा। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इनका लहजा, इनका अंदाज थोड़ा सख्त था। मायदा अपना सब मुँह लेकर रह गई। कहकर वो रुकी नहीं। इनके जाने के बाद मायदा सर झुकाकर दोबारा कुर्सी पर बैठ गई। इसके बैठते ही शहरयार ने इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर इसके हाथ को हल्के से थपथपाया। मायदा अपना निचला लब दांतों में दबाकर अपने इमोशंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, लेकिन इसके बावजूद हेज़ल ब्राउन आंखों में सुर्खी उतर आई थी। सब लोग खाने से हाथ रोके मायदा को देख रहे थे। डाइनिंग हॉल में बिल्कुल खामोशी का राज था। बेटा, मेरे लिए बनाओगी? इस खामोशी को एकदम हारून साहब की आवाज़ ने तोड़ा। मायदा ने एकदम इनकी तरफ देखा। आपने 2 दिन पहले मुझे चाय बनाकर पिलाई थी। आप यकीन करें, मैंने इससे अच्छी चाय कभी नहीं पी थी। तो अगर आपको परेशानी ना हो तो आप मेरे लिए चाय बना सकती हैं। हारून साहब ने कहा तो मायदा एकदम मुस्कुरा दी। जी बाबा साईं, मैं आपके लिए चाय बना दूंगी। वो खुश होकर बोली, अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे लिए भी। हाशिर ने कहा, सिर्फ आपके लिए क्यों, मैं भी पीऊँगी। मुहिब्बा ने कहा, मैं सबके लिए बना लूँ? मायदा ने पूछा, बिल्कुल, सबके लिए बना लें। ठंड है, ठंड में तो चाय का कोई वक्त नहीं होता। जोहा बेगम ने हंसकर कहा तो मायदा भी मुस्कुराकर इन्हें देखने लगी। वो सब इसके साथ बहुत अच्छे थे। सब इसका बहुत ख्याल रखते थे और मायदा भी हर वक्त अपनी ये कोशिश करती थी कि किसी को भी इससे किसी भी तरह की शिकायत ना हो। वो तो हिना बेगम से भी बात करने की कोशिश करती थी, लेकिन इनका रवैया देखकर इसकी कोशिश हमेशा नाकाम रह जाती थी। अभी भी इसने सबकी मौजूदगी में हिम्मत करके इनसे चाय का पूछा, लेकिन वो इनका रवैया फिर इसका दिल लेकिन इनका रवैया फिर इसका दिल दुखाने का बायस बना। चलिए ठीक है, मैं आप लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। अपनी प्लेट पीछे खिसकाकर वो कुर्सी से उठी और किचन में चली गई। 15 मिनट बाद वो सबके लिए चाय लेकर दोबारा डाइनिंग हॉल में हाजिर थी। सब वहीं बैठे इसके चाय का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन हारून साहब वहाँ मौजूद नहीं थे। बाबा साईं कहाँ पर है? इसने ट्रे रखते हुए पूछा। बाबा कमरे में चले गए। लाओ, मैं इनकी चाय वहाँ दे आता हूँ, शहरयार ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं, आप रहने दें, मैं दे आती हूँ कहकर इसने छोटी ट्रे भूल गई, उठाई और इसमें 2 कप चाय रखकर डाइनिंग हॉल से निकल गई। फिर हारून साहब के कमरे के पास आकर इसने दरवाज़ा नॉक किया। 2 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। सामने हारून साहब थे। बाबा, आपकी और मम्मी की चाय। इसने ट्रे आगे करते हुए कहा तो हारून साहब ने मायदा के हाथ से ट्रे लेकर इसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा। मायदा इनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा दी और पलटकर दोबारा डाइनिंग हॉल की तरफ चल दी। लीजिए चाय। कमरा बंद करके इन्होंने हिना बेगम से कहा, जो सोने के लिए अपना बिस्तर सेट कर रही थी। मुझे नहीं पीनी, इन्होंने कहा। इसने बहुत प्यार से आपके लिए बनाई है और आप पीकर देखें इसके हाथ की चाय। आप यकीन करें, आपको पसंद आएगी। इनके पास आते हुए हारून साहब ने कहा,
میں نے کہہ دیا نا مجھے نہیں پینی مطلب نہیں پینی، وہ کچھ ہٹ دھرمی سے بولی۔ اس وقت انہیں غصہ نہیں آ رہا تھا، اس وقت ان کا دل دکھ رہا تھا۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنی جگہ کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ ہارون صاحب کچھ دیر انہیں دیکھتے رہے، ٹرے کو بیڈ سائڈ پر رکھ کر ان کے پہلو میں بیٹھ گئے۔ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ انہوں نے کہا تو ہنا بیگم نے پلٹ کر ایک دم ان کی طرف دیکھا۔ کچھ لمحے وہ انہیں دیکھتی رہیں، پھر بنا کچھ کہے اپنا رخ پھیر لیا۔ میں کوشش کروں گا کہ آئندہ کبھی آپ کے سامنے سلطان کی ماں کا ذکر نہ کروں، انہوں نے کہا تو ہنا بیگم نے اب کی بار اور زیادہ حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ مجھے پتہ ہے، مجھے اس وقت جارجیا کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو تکلیف ہوئی، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، انہوں نے ہنا بیگم کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ان کی بات پر ہنا بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ہارون صاحب نے انہیں شانوں سے تھام کر آہستہ سے انہیں اٹھا کر بیٹھا دیا، پھر بڑی نرمی سے ان کے آنسوؤں کو صاف کرنے لگے۔ کچھ لمحے خاموشی کے دونوں کے درمیان رہے۔ ایک بات پوچھوں آپ سے؟ پھر اس خاموشی کو ہنا بیگم کی بھیگی آواز نے توڑا۔ ہارون صاحب نے ہنکارا بھرا۔ کیا کبھی آپ نے مجھ سے بھی محبت کی ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ہارون صاحب کی نظریں جھک گئیں۔ ان کی نظریں جھکانے پر ہنا بیگم کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ ابھری۔ جانتی ہوں کبھی نہیں کی، لیکن آپ یقین کریں مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی میرے ساتھ حق تلفی نہیں کی۔ آپ نے مجھے ہر وہ مقام دیا جو آپ نے سلطان کی ماں کو دیا۔ اپنا نام دنیا میں اپنے نام سے جاننے کا اعزاز، اپنے بچوں کی ماں ہونے کا اعزاز، بس نہیں دی تو محبت۔ یہاں آ کر میرا دل بہت دکھتا ہے۔ سالوں ہو گئے ہیں سلطان کی ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن آپ آج تک انہیں نہیں بھولے۔ میں یہ نہیں کہتی آپ انہیں بھول جائیں۔ آپ انہیں بھول جائیں، لیکن آپ کی محبت پر، آپ کی ذات پر تھوڑا حق تو میرا بھی ہے۔ آپ نے تو کبھی وہ حق بھی مجھے نہیں دیا۔ آج پہلی بار ہنا بیگم ان سے شکایت کر رہی تھی اور ہارون صاحب سر جھکائے ان کی شکایت سن رہے تھے۔ یہ سچ ہے کہ میں سلطان کی ماں سے آج بھی بہت محبت کرتا ہوں، اور شاید اپنی آخری سانس تک کرتا رہوں گا، لیکن میں اپنے کیے پر نادم ہوں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آگے آپ کو شکایت کا کوئی موقع نہیں دوں گا۔ کوشش کروں گا کہ سلطان کی ماں کا ذکر آپ کے سامنے نہ کروں، آپ کو وہ محبت دوں جو آپ کا حق ہے۔ آپ نے جو میرے لیے کیا میں وہ کبھی نہیں بھول سکتا۔ آپ نے مجھے دو اتنے شاندار اور فرمانبردار بیٹے دیے، اور اب آپ نے میرے سلطان کو بھی اپنے آنچل میں سمیٹ لیا۔ میں تو آپ کے ان احسانوں کا بدلہ کبھی بھی نہیں چکا سکتا۔ جو گزر چکا ہے وہ وقت واپس نہیں لا سکتا، لیکن وعدہ کرتا ہوں آگے کی جتنی بھی زندگی آپ کے ساتھ گزرے گی، پوری ایمانداری سے آپ کے ساتھ گزاروں گا۔ آپ کو وہ محبت دوں گا جو آپ کا حق ہے۔ ہارون صاحب کہہ رہے تھے اور ہنا بیگم
धुंधलाई आंखों से इन्हें देख रही थी। मैं ये नहीं कहती कि आप सुल्तान की माँ को भूल जाएं, और मेरे कहने से कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप इन्हें कभी नहीं भूल सकते, न आप इनसे मोहब्बत करना छोड़ सकते हैं। लेकिन आप इस मोहब्बत में से थोड़ा हिस्सा मुझे दे देंगे तो मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी। हिना बेगम ने कहा तो हारून साहब ने एकदम इनके दोनों हाथ थामकर अपने लबों से लगा लिए। बस अब आप आगे कुछ नहीं कहेंगी, हारून साहब ने तड़प कर कहा। तो फिर इनका हाथ छोड़कर इन्हें खुद से लगा लिया। आज इन्हें भी अपनी ज़्यादतियों का एहसास हुआ था। मैं मानता हूँ मैं सुल्तान की जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं सुल्तान की माँ जितनी मोहब्बत नहीं कर सकता, लेकिन वो मोहब्बत जिस पर आपका हक है वो आपको ज़रूर दूंगा। हारून साहब ने आहिस्ता से कहा तो हिना बेगम रोते हुए भी मुस्कुरा दी। कुछ देर वो इनके सीने से इसी तरह लगी रही, फिर आहिस्ता से इनसे अलग हुई। चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है। इन्होंने चाय के कपों को देखकर हंसते हुए कहा, मैं दूसरी बना लाती हूँ। हिना बेगम ने कहा, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हें उठता देखकर हारून साहब ने कहा, बस अब आप काम करें, बस अब एक काम करें, माहिदा को अपना लें। वो बहुत अच्छी बच्ची है, बहुत प्यारी, बहुत मासूम। इसे अपने बेटे की किए की सजा मत दे। हारून साहब ने कहा तो हिना बेगम ने कुछ खूफी से इन्हें देखा। अगर नाराज़ होना है तो अपने बेटे से हो, जिसने ज़बरदस्ती माहिदा से निकाह किया था। हारून साहब ने इनके खूफी से देखने पर कहा, मैं दोनों से नाराज़ हूँ, वो बोली। और कब तक रहेंगी? इन्होंने पूछा। पता नहीं, लेकिन फिलहाल मेरे दोनों में से किसी को भी माफ़ करने का कोई इरादा नहीं है, और आप भी मुझे इस बात के लिए फोर्स नहीं करेंगे। और इन साहब को कुछ कहने की कोशिश कर हारून साहब को कुछ कहने की कोशिश करते देखकर इन्होंने एकदम कहा, जल्दी दोनों को माफ़ कर देना। शहरयार आपका लाडला बेटा है। इससे आप इतने दिन नाराज़ रहेंगे तो इस पर क्या गुजरेगी? हारून साहब ने कहा, जी नहीं, वो आपका लाडला होगा, मेरा लाडला हाशिर है। हिना बेगम एकदम बोली, हाँ, ये भी बात सही है। शहरयार और सुल्तान मेरे लाडले हैं और हाशिर आपका। तो प्लीज़ मेरे लाडले से ज़्यादा दिन नाराज़ मत रहिए। हारून साहब ने कुछ इस अंदाज में कहा कि ना चाहते हुए भी हिना बेगम के होठों पर मुस्कुराहट फैल गई। इनको मुस्कुराता देखकर हारून साहब भी मुस्कुरा दिए। अब इनको यकीन था वो दिन भी दूर नहीं जब वो शहरयार और माहिदा को माफ़ करके इनको अपना लेंगी। आप इतनी रात को किचन में क्या कर रहे हैं? रात के करीब 2:30 बज रहे थे। हाशिर किचन में अपने लिए कॉफ़ी बना रहा था जब इसे पीछे से मुहिब्बा की आवाज़ सुनाई दी। इसने पलटकर एकदम मुहिब्बा को देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाशिर ने पूछा। कुछ नहीं, वो मैं कहकर वो खामोश हो गई। क्या वो बताओ मुझे, इस वक्त तुम यहाँ क्या कर रही हो?
फिल्म को स्लो करते हुए हाशिर ने मुहिब्बा से पूछा। वो मैं लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। मेरे कमरे में टीवी नहीं है और मुझे एक मूवी देखनी थी, इसलिए लिविंग रूम में देख रही थी। मुहिब्बा ने आगे बढ़कर कहा। देख ली मूवी? हाशिर ने पूछा। जी, मुहिब्बा ने जवाब दिया। तो फिर जाओ अपने कमरे में, हाशिर ने मुहिब्बा से नजर चुराते हुए कहा। मुहिब्बा ने नाइट सूट पहना हुआ था और दुपट्टा सीने से गायब था। आप कॉफी बना रहे हैं? इसके बाद को नजरअंदाज करते मुहिब्बा ने पूछा। हाशिर ने रुख फेरे जवाब दिया। मेरे लिए भी बना दें? इसने बड़े प्यार से कहा। कॉफी पियोगी तो नींद नहीं आएगी। जाओ, जाकर कमरे में सो जाओ, हाशिर ने कहा। नींद तो अब वैसे भी मुश्किल से आएगी, मुहिब्बा ने कहा। तो हाशिर ने एकदम पलट कर इसकी तरफ देखा। फिर अगले ही लम्हे दोबारा इससे नजरें चुरा ली। वो मेरा मतलब है अब काफी लेट हो गया है, तो नींद भी मुश्किल से आएगी। कॉफी पीऊंगी तो हो सकता है फजर की नमाज तक आँख खुली रहे। कहते हुए मुहिब्बा हाशिर के पास आकर खड़ी हो गई। कॉफी बन चुकी है, अगर तुम्हें पीनी है तो खुद बना लो, हाशिर ने अपनी कॉफी मग में पोर करते हुए कहा। नहीं, मुझे नहीं बनानी, मुझे ये पीनी है जो आपने बनाई है। मुहिब्बा ने मग की तरफ इशारा किया। ये मेरी कॉफी है मुहिब्बा, हाशिर ने मग उठाते हुए कहा। मैं भी तो आपकी हूँ, मुहिब्बा ने कहा। तो हाशिर ने बेसाख्ता इसकी तरफ देखा। वो जानता था वो जितना इसे देखने से गुरेज कर रहा था, वो लड़की इतनी ही ऐसी बातें कर रही थी कि वो उसे देखने पर मजबूर हो रहा था। क्यों नहीं हूँ? मुहिब्बा ने इसके देखने पर पूछा। तुम्हें कॉफी पीनी है? हाशिर ने पूछा। हाँ, वो खुश होकर बोली। ये रखा सारा सामान, बना लो। सारे सामान की तरफ इशारा करते हुए हाशिर ने कहा और अपना मग उठाकर होठों से लगाते हुए पलट कर जाने लगा। मैंने आपसे कहा ना, मुझे ये कॉफ़ी पीनी है, मुहिब्बा ने एकदम इसकी हुड को इसकी पुश्त से पकड़कर कहा। तो हाशिर के आगे बढ़ते कदम रुक गए। इसने फिर पलटकर मुहिब्बा को देखा, जो इसके देखने पर मुस्कुराने लगी। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाशिर ने पूछा। मुझे कॉफ़ी पीनी है, और वही जो आपने बनाई है, मुहिब्बा ने कहा, और इसका जवाब सुने बगैर आगे बढ़कर इसके हाथ से मग लेकर अपने होठों से लगा लिया। हाशिर इसकी जसारत पर इसे देखता रह गया। वाह, आपने तो बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाई है, कमाल कर दिया आपने। शुगर फ्री है, लेकिन इसके बाद भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत मीठी हो। और पता है ऐसा क्यों? क्योंकि आपने इसे पी लिया। इसकी हुड छोड़कर वो इसके सामने आकर बोली। हाशिर ज़ब्त से इसको देख रहा था, जो अपने हुलिये की परवाह किए बिना इसके सामने खड़ी थी। कुछ लम्हे वो लब को भीटे से देखता रहा, फिर अपनी हुड उतार कर इसके हाथ से कॉफ़ी का मग छीनकर टेबल पर रखा और अपनी हुड इसके सीने पर फैला दी। कमरे से बाहर निकलते हुए एक बार अपने हुलिये पर नज़र डाल लेनी चाहिए।
हाशिर ने जताते हुए कहा। तो मुहिबा कुछ देर तो इसे देखती रही, फिर अपने सीने पर पड़ी इसकी हुड को देखा और फिर बेख्तियार मुस्कुरा दी। आपको मेरा इस तरह कमरे से निकलना अच्छा नहीं लगा? वो थोड़ा आगे बढ़कर इसके करीब आकर बोली। इसके पूछने पर हाशिर खा जाने वाली नज़रों से इसे देखने लगा। वैसे मैं एहतियात बरतती हूँ, मुझे थोड़ी पता था आप मिल जाएंगे, वो इसके देखने पर बोली। हाशिर इसकी बात का जवाब दिए बगैर साइड से होकर गुजरने लगा कि एकदम मुहिबा ने इसके सीने पर हाथ रखकर इसे आगे जाने से रोका। क्या हो गया है? अब क्यों आप इस तरह जा रहे हैं? अब तो आपने मुझे अपनी हुड भी उड़ा दी। अब क्या परेशानी है मेरे पास खड़े रहने में? मुहिबा ने पूछा। तुम चाहती क्या हो? हाशिर ने पूछा। आप अपनी कॉफ़ी पी लें। मुहिबा ने कॉफ़ी का मग इसके सामने करते हुए कहा। जी नहीं, तुम खुद पी लो। कहते हुए हाशिर ने अपने सीने से इसका नाजुक हाथ हटाया और कदम आगे बढ़ा दिए। आप इसलिए अपनी कॉफ़ी नहीं पी रहे क्योंकि मैंने इसको झूठा कर दिया है? मुहिबा ने पूछा। तो हाशिर रुका और पलटकर इसकी तरफ देखा। यही बात है ना? इसके देखने पर मुहिबा ने पूछा। तुम्हें कॉफ़ी पीनी थी, तुम कॉफ़ी पियो, फालतू की बातें क्यों करनी? वो बोला। मैं तो पी लूँगी, लेकिन आप भी तो पिए। इसने कहा। अब मेरा दिल नहीं है, हाशिर ने जवाब दिया। आपका दिल था, तभी तो आप कॉफ़ी बनाने आए थे, लेकिन वो बात अलग है कि आपकी बनाई कॉफ़ी मैंने पी ली। चलें, कोई बात नहीं, मैंने आपकी कॉफ़ी पी ली तो क्या हुआ? मैं आपको अपने हाथ की कॉफ़ी बनाकर पिलाती हूँ। आए बैठे। मुहिबा ने आगे बढ़कर इसका हाथ थामा और अपने साथ लाकर इसे कुर्सी पर बैठा दिया। मेरा दिल नहीं है मुहिबा, हाशिर ने कहा। ये जो कॉफ़ी है ये बिना दिल की पी रहे थे। अपने हाथ में पकड़े मग को इसके सामने करते हुए कहा। तब था, अब नहीं है, हाशिर ने जवाब दिया। क्योंकि मैंने पी ली इसलिए? मुहिबा ने कहा। लहजे में कुछ उदासी थी जिसे हाशिर साफ तौर पर महसूस कर सकता था। आप बैठे, बस मैं आपके लिए झटपट कॉफ़ी बनाती हूँ। कॉफ़ी का मग टेबल पर रखकर मुहिबा पलटकर प्लेटफॉर्म की तरफ चल दी। यही कॉफ़ी गर्म कर लो, यही हम दोनों पी लेंगे। यही हम दोनों के लिए काफ़ी है, हाशिर ने कहा। तो मुहिबा ने एकदम पलटकर इसकी तरफ देखा। क्या कहा आपने? अंदाज में खुशगवार हैरत थी। मैं कह रहा हूँ यही कॉफ़ी गर्म कर लो, ये काफ़ी है हम दोनों के लिए, हाशिर ने फिर कहा। ठीक है, कहते हुए वह आगे बढ़ी। पहले ये ठीक से पहनो। इसको मग उठाते देखकर हाशिर ने कहा। तो मुहिबा ने जल्दी से हुड को सही से पहना, फिर मग उठाकर कॉफ़ी गर्म करने चल दी। कुछ देर बाद वो 2 छोटे कपों में कॉफ़ी लेकर इसके सामने बैठ गई। हाशिर ने अपना कप उठाया और होंठों से लगा लिया। इसकी नज़रें झुकी हुई थी, जबकि मुहिबा कॉफ़ी पीते हुए एकटुके से देख रही थी। हाशिर, मुहिबा ने इसे पुकारा। हाशिर ने नज़र उठाकर इसे देखा। हाशिर के देखने पर वो खामोश हो गई। क्या हुआ? इसके खामोश होने पर हाशिर ने पूछा। आप मुझसे अब भी नाराज़ हैं? मुहिबा ने हिम्मत करके पूछा। हाशिर खामोश रहा
और अपने हाथ में पकड़ा कप टेबल पर रखकर इसे देखने लगा। बताएं, आप मुझसे भी नाराज हैं? मुहिबा ने इसके कुछ न कहने पर फिर पूछा। इसकी खामोशी मुहिबा को डरा रही थी। हाशिर खामोश नजरों से इसे देख रहा था। मर्द में इतना ज़र्फ क्यों नहीं होता कि वो औरत की किसी खता को माफ़ कर सके? औरत तो मर्द की बड़ी से बड़ी खता को माफ़ कर देती है। इसकी बेवफाई, इसकी लाताल्लुकी को नज़रअंदाज कर देती है। मगर मर्द कुछ भी करे, लेकिन औरत फिर भी अपना दिल बड़ा करके, अपना ज़र्फ को बुलंद करके मर्द को माफ़ कर देती है। मर्द ये क्यों नहीं कर सकता? हाशिर की खामोशी पर मुहिबा ने पूछा। इसके नैन कटोरों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आया था। इसके आंसू हाशिर को तकलीफ देने लगे। वो एकदम आगे बढ़ा और इसका चेहरा हाथों के प्यालों में ले लिया। मुहिबा दम्बा खुद से देखने लगी। मैंने तुम्हें माफ़ किया। कुछ देर बाद हाशिर बोला तो मुहिबा की जान में जैसे जान आई। आंखें एकदम तशक्कुर के एहसास से भीग गई। थैंक यू सो मच, मुहिबा ने कहा। कहते हुए इसने अपने गालों पर रखे हाशिर के हाथों पर अपने हाथ रख दिए। आप मुझसे अब भी मोहब्बत करते हैं ना? फिर इसने पुरुम्मीद लहजे में पूछा। ये बात पूछते हुए इसका दिल धक धक कर रहा था। हाशिर ने कुछ देर इसकी आंखों में देखा, फिर मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट मुहिबा के दिल की धड़कनों को मुंतशिर कर गई। मैं लफ्ज़ों के मामले में बड़ा कंगाल हूँ मुहिबा। मुझे लफ्ज़ों के खेल नहीं आते। मैं अपनी बातों को किसी माला में मोतियों की तरह नहीं पिरो सकता। शायद इसीलिए तुमने मेरी मोहब्बत को कभी महसूस नहीं किया। शायद इसीलिए तुम्हें कभी एहसास नहीं हुआ कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। हाशिर ने इसकी आंखों में देखते हुए कहा। मैं मानती हूँ हाशिर, मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती, लेकिन कभी कभी कुछ बातें, कुछ एहसास लफ्ज़ों से बयान किए जाएं तो ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। आपको बड़े पापा से ये कहने के बजाय कि आपको मुझसे शादी करनी है, आपको मुझसे मोहब्बत है, मुझसे ये बात करनी चाहिए थी। मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना चाहिए था। वक्त लगता, लेकिन मुझे यकीन है कि मैं मान जाती, क्योंकि आपने मुझसे पाक मोहब्बत की है। ऐसी मोहब्बत जो खुश नसीबों को मिलती है। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास आपकी मोहब्बत है। मैं फिर से आपसे अपने रवैये की माफ़ी मांगती हूँ, मुहिबा ने कहा तो हाशिर ने आहिस्ता से नफ़ी में सर हिला दिया। तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, इसने कहा। क्यों? मुहिबा ने पूछा। क्योंकि तुम माफ़ी मांगती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हाशिर ने इसके मासूम चेहरे को मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा। तो फिर कैसे अच्छी लगती हूँ? इसने पूछा। ज़िद्दें करती हुई, प्यारी प्यारी बातें करती हुई। हाशिर ने अपने दाएं हाथ का अंगूठा इसके गाल पर फेरते हुए कहा। तो मुहिबा के होठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। वो कुछ लम्हे हाशिर को देखती रही। दोनों के चेहरे एक दूसरे के बेहद करीब थे। कुछ लम्हे से देखने के बाद मुहिबा एकदम आगे बढ़ी और इसके होठों पर अपने होठों का लम्स छोड़कर पीछे हो गई। हाशिर दम्बा खुद से ऐसे देखने लगा। इसकी सांस जहाँ थी वहीं अटक कर रह गई।
सुरमई आंखों में हैरानी के साए लहराए। इसका नर्म लम्स हाशिर के हुनाबी लबों को दहका गया। हाशिर के होठों को चूम कर मुहिब्बा ने एकदम अपनी आंखें बंद कर ली। ये क्या था? तो ये क्या किया तुमने? कुछ देर बाद हाशिर होश की दुनिया में आकर बोला। मुहिब्बा ने इसके पूछने पर और कस के आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो और बताओ मुझे ये क्या था? हाशिर ने अपने दायां हाथ इसके चेहरे से हटाकर पूछा। मुहिब्बा आंखें खोलो और मुझे बताओ ये क्या था? हाशिर ने फिर कहा। इसका चेहरा अंगारे की तरह तपने लगा था। मुहिब्बा। हाशिर ने अब की बार इसका नाम कुछ सख्ती से लिया तो मुहिब्बा ने डरते डरते आंखें खोली और हाशिर का लाल भभूका चेहरा देखकर इसने दोबारा अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, खबरदार जो आंखें बंद की तो। इसके दोबारा आंखें बंद करने पर हाशिर तेज लहजे में बोला तो मुहिब्बा ने डर कर अपनी आंखें खोल ली। एक्सप्लेन। हाशिर ने कहा। क्या एक्सप्लेन करूं? इसने मासूमियत से पूछा। इसके मासूमियत से पूछने पर हाशिर का दिल गया कि टेबल पर रखा जग उठाकर इस पर पलट दे ताकि इसको होश आए और इसे समझ में आए कि इसने क्या किया है, कौन सा कारनामा अंजाम दिया है। ये जो तुमने हरकत की है इसको एक्सप्लेन करो। हाशिर ने कहा। इसमें क्या एक्सप्लेन करूं? मासूमियत रोज थी कि तुमने क्यों किया? ये तुमने क्यों किया? हाशिर ने पूछा। अपनी फ्रेंड के कहने पर मुहिब्बा ने कुछ डरते डरते बताया। क्या? हाशिर को इसकी बात पर शौक लगा। हाँ, अपनी फ्रेंड के कहने पर मैंने ये किया, मुहिब्बा ने डरते डरते बताया। तुम्हारी फ्रेंड ने कहा था तुम मुझे किस करो? हाशिर हैरान होकर बोला। हाँ। बड़ी सादगी और तमाम मासूमियत समेट कर मुहिब्बा ने हाँ में सर हिलाया। तुम्हारी फ्रेंड ने ये क्यों कहा? वो और शौक हुआ। वो मैंने इसे बताया था कि आप मुझसे नाराज़ हैं तो इसने मुझसे कहा था कि मैं आपको किस कर दूं तो आपकी नाराज़गी ख़त्म हो जाएगी। अपने दोनों हाथों की मखरूती उंगलियां आपस में फंसाकर इन्हें मरोड़ते हुए मुहिब्बा ने कहा। क्या कह रही हो तुम? तुमने अपनी फ्रेंड से क्या बताया है? अब तो हाशिर को शौक पर शौक लग रहे थे। मैंने इन्हें कुछ नहीं बताया, बस मैंने इतना कहा था कि आप मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे बात नहीं कर रहे हैं तो इन्होंने कहा था कि आपको मनाने का सिर्फ एक तरीका है, मैं आपको किस कर दूं। मुहिब्बा बोली। मैंने तुमसे नाराज़गी ख़त्म कर दी थी, तुमने इसके बाद किस किया है? हाशिर गुस्से से बोला। हाँ, ये तो है, लेकिन मुझे लगा अगर मैं आपको किस करूँगी तो जो थोड़ी बहुत नाराज़गी है वो भी ख़त्म हो जाएगी। वो बोली तो हाशिर को इसकी मंतक पर बड़ा गुस्सा आया। मुहिब्बा। हाशिर ने अपना सर दोनों हाथों में थाम कर इसका नाम लिया। क्या आप मुझसे नाराज़ हैं? वो हाशिर के सर थामने पर डर कर बोली। हाशिर ने एकदम इसकी तरफ गुस्से से देखा। अल्लाह पूछे तुमसे शाजिया, तुमने तो कहा था ये मान जाएंगे, लेकिन ये तो और नाराज़ हो गए। मुहिब्बा ने दिल ही दिल में अपने दोस्त से कहा। नहीं, बहुत खुश हूँ। हाशिर गुस्से से बोला।
अगर आप खुश हैं तो गुस्सा क्यों कर रहे हैं? वो मासूमियत से बोले तो हाशिर की आंखें हैरत से बड़ी हो गई। मैं गुस्सा ही हूँ, तुम्हारी ये हरकत गुस्से वाली ही है। हाशिर ने कहा तो वो एकदम डर कर कुर्सी की पुश्त से लग गई। देखें, मैंने आपको प्रॉपर किस नहीं किया, मैंने सिर्फ कहते कहते उसकी ज़बान को ब्रेक लग गए क्योंकि हाशिर इसे खूंखार नज़रों से देख रहा था। उठो यहाँ से और जाओ। हाशिर ने उसे उठने का इशारा किया। आप मुझसे नाराज़ तो नहीं हैं? कुर्सी से उठते मुहिब्बा ने डरते डरते पूछा। मुहिब्बा, अगर तुम यहाँ से नहीं गई तो खुदा की कसम मैं तुम्हें उठाकर किचन से बाहर फेंक दूंगा। हाशिर ने इसके पूछने पर गुस्से से कहा तो वो सर पर पैर रखकर वहाँ से खिसकने लगी। मेरी एक बात कान खोल कर सुनो। हाशिर ने कहा तो इसके बढ़ते कदम रुक गए। अगर तुमने आइंदा ऐसी कोई हरकत की या तो अपनी इस दोस्त से आइंदा कभी मिली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पता नहीं कैसे दोस्त बनाई हुई है। हाशिर ने गुस्से से कहा तो मुहिब्बा दांतों तले अपनी उंगली दबा गई। सुनाई दी मेरी बात? हाशिर ने कोई सुनगुन न देखकर तेज लहजे में पूछा। जी समझ गई, मुहिब्बा ने कहा और इस तरह गायब हुई जैसे गधे के सर से सींग। इसके किचन से जाते हाशिर ने अपना चेहरा अपने हाथों में ढांप लिया। कितनी ही देर वो इसी तरह बैठा रहा, फिर बेख्तियार इसकी मजबूत उंगलियां अपने होठों पर आकर ठहर गईं, जहां पर इसे अभी भी मुहिब्बा के नरम लबों का लम्स महसूस हो रहा था। उफ, ये लड़की क्या है? हाशिर ने अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए खुद से कहा और इसका चेहरा अंगारे की तरह सुर्ख हो रहा था। जज्बात मुहिब्बा के लम्हे भर के लम्स पर थर्रा कर रह गए थे। पागल लड़की, हाशिर ने खुद से कहा और गहरा सांस भरकर कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर ऊपर की जानिब देखा और फिर से अपना चेहरा हाथों में छुपा लिया। मामा, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, हादिद ने ऑमलेट खाते हुए कहा। हाँ बेटा, बताएं क्या बात है? सारा बेगम ने प्यार से कहा, जबकि जिलानी साहब बस इसे देखने लगे। जो मैं कह रहा था कि कहकर इसने कुछ लम्हे का पॉज लिया। क्या कह रहे थे बरखुरदार? जिलानी साहब ने हंसकर पूछा। डैड, मैं कह रहा था कि इनके हंसकर कहने पर हदीद कुछ गड़बड़ा सा गया। हाँ बोलो बरखुरदार, क्या कह रहे थे? इन्होंने फिर कहा तो हदीद इन्हें देखता रह गया। वो इसे मुस्कुराती नजरों से देख रहे थे, ऐसे जैसे वो इसके दिल की बात जानते हों। और वाकई वो इसके दिल की बात जानते थे। मामा, मैं कह रहा था। इन पर से नजर हटाकर हदीद ने सारा बेगम पर मरकूज करते हुए कहा तो जिलानी साहब हंस पड़े। आपके लाडले बेटे चाहते हैं कि इनकी बीवी की रुखसती हो जाए। हदीद के कुछ कहने से पहले इन्होंने कहा तो सारा बेगम ने सवालिया नजरों से इसे देखा। जिलानी साहब के कहने पर हदीद ने एकदम नजरें झुकाई, फिर सारा बेगम के पूछने पर आहिस्ता से सर को अस्बात में हिला दिया। काफी टाइम हो गया है निकाह को हुए।
सॉरी, काफ़ी टाइम हो गया है निकाह को। आई थिंक इतना टाइम काफ़ी है। हदीद ने कहा, हाँ काफ़ी है, लेकिन पहले तुम ये बताओ कि तुम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक है ना। सारा बेगम ने अपने हाथ में पकड़े फोर्क को प्लेट में रखते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही ठीक है, इतना कि अपने हॉस्पिटल से जल्दी निकलकर आपके लाडले अपनी बीवी से मिलने कोर्ट आते हैं। जिलानी साहब ने कहा तो हदीद ने एकदम इनकी तरफ देखा। इसके देखने पर जिलानी साहब हंस पड़े। बेटा तुम्हारा बाप हूँ। जिलानी साहब ने इसके देखने पर कहा तो हदीद खिजल सा होकर मुस्कुरा दिया। क्या सच में? सारा बेगम को हैरानी हुई। और नहीं तो क्या, मैंने बहुत बार आपके बेटे को अपनी बीवी से मिलने के लिए कोर्ट में आते देखा है। कल भी आपका आपका लाडला आपके लाडले अपनी बीवी से मिलने आए हुए थे। इन्होंने हंसकर कहा तो हदीद मासूम सा मुंह बनाकर इन्हें देखने लगा, ऐसे जैसे कह रहा हूँ प्लीज़ मेरी टांग खींचना बंद कर दें। अरे क्या हुआ, ऐसे क्या देख रहे हो? कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी है, एक बार नहीं 100 बार मिलो, 100 बार मिलने आओ। मैं 100 बार मिलने आओ, किसी को कोई एतराज़ नहीं होगा। इसके देखने पर जिलानी साहब ने कहा, यही तो कह रहा हूँ मैं, इसे वहाँ देखने क्यों जाऊँ जब वो मेरे घर में आ सकती है। तो हिम्मत करके हदीद ने कहा, तुम्हारी बात बिल्कुल दुरुस्त है। इन्होंने हदीद की बात की तायद की तो बस ठीक है। अब आप मेरी ये दुरुस्त बात जाकर किरण के पेरेंट्स से बताएं, इनसे कहें कि वो मेरी बीवी को रुखसत करें। हदीद ने आखिरकार कह दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारी खुशी से हमारे लिए तुम्हारी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है। हम 1-2 दिन में जाकर भाभी और भाई से किरण की रुखसती की बात करेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है वो तब तक रुखसती के लिए नहीं मानेंगी जब तक नूर का बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। सारा बेगम ने कहा, ये तो मुझे भी पता है मामा कि रुखसती तब तक नहीं होगी जब तक नूर और इसका बच्चा बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता। और मैं भी इससे पहले नहीं कह रहा, बस मैं चाहता हूँ कि आप जाकर इनसे इस मौजू पर बात कर लें ताकि वो मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। हदीद ने कहा, ऑल राइट, हम ऐसा करेंगे, 1-2 दिन में जाकर खुद इनसे बात करेंगे, लेकिन फैसला वही होगा जो वो चाहेंगे। जिलानी साहब ने अपनी बात कहते हुए हदीद को ये भी जता दिया कि फैसला वही होगा जो वो लोग कहेंगे। ठीक है। हदीद एकदम मान गया, और वो इसलिए क्योंकि इसे पता था वो रुखसती की बात पहले किरण से करेंगे, और किरण तो पहले ही मान चुकी है। वो हाँ कर देंगी तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं वो हाँ कर देगी तो इन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, सॉरी, तो फिर ठीक है बरखुरदार, हम अपनी बहू को रुखसत कराने के लिए इनके माँ बाप से बात करने चले जाएंगे और पूरी कोशिश करेंगे वो जल्द से जल्द हमारी बहू को रुखसत करने के लिए मान जाए, ताकि हमारे बेटे को अपनी बीवी से मिलने के लिए कोर्ट के चक्कर न काटने पड़े।
जिलानी साहब ने हदीद पर लतीफ़ सा तंज किया तो वो खिफ़्फ़त सा होकर मुस्कुरा दिया, जबकि सारा बेगम अपने शौहर की बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जारी है। सब अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, लाइक कमेंट करेंगे, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।